लोकमान्य तिलक की फिजिकल फिटनेस का उदाहरण देते हुए डॉक्टर कविता रेगे ने स्टूडेंट से स्पोर्ट्स पर विशेष ध्यान देने की ताकीद की। But at the same time, you should go out. You have a beautiful playground on the playground, because I think somebody spoke about Tirak. Tirak had taken 1 year off from his academics to build his strength, because त्यांचं म्हणणं असं होतं की मला माझ्या देशाकरता जर काम करायचं असेल तर माझ्यामध्ये तेवढी पॉवर शक्ती पाहिजे, आणि स्ट्रॉंग माइंड रिसाइड्स इन अ स्ट्रॉंग बॉडी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने शिक्षा के दौरान 1 साल का गैप लेकर अपना समय शरीर की मजबूती पर लगाया। ये बयान है डॉक्टर कविता रेगे का, जो साठे कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्य रह चुकी हैं। डॉक्टर रेगे मुंबई के वर्सोवा स्थित वर्सोवा एजुकेशन ट्रस्ट के वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और श्रीमती कमला मेहता कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छात्र छात्राओं को संबोधित कर रही थी। अपने संबोधन से पहले उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। जय श्रीमती जी। वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज आपको फ्लैग होस्टिंग के लिए आमंत्रित करता है। राष्ट्रीय झंडे को सलामी देंगे। सलामी दो। Hands down. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। डॉक्टर कविता रेगे ने स्टूडेंट्स को शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स से जुड़ने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स से जुड़ने की वजह से आपके करियर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने स्टूडेंट्स द्वारा पेश किए गए कार्यक्रमों की जमकर तारीफ की। You are the persons. We call you as our future, or youth is our future is a बहुत घिसा-पिटा sentence, है ना? पण you really think in a different way, and that is what I think is most important in this age of AI. Just like Faiza said, Faiza gave lots of, whoever wrote for her, or if it was her own thought, amazing. That speech was absolute. She actually stole all my points, you know? So I don't know what to say. But very nice 3 speeches given by students in all 3 languages, which was quite amazing. That was a very unique idea. And everyone presented something different. The dances that were done in the military uniform really touched my heart, especially the senior KG students were so cute. So these are the things, you know, that bring out the patriotic spirit in us. And this is the day to remember how so many sacrifices have been made for us to enjoy the freedom. As we rightly say, with freedom comes responsibility, and the responsibility towards yourself. You have to develop yourself. Schools definitely help you, but you have to act as per the teacher's instructions. That is very important, because see, we say Gurur Devo Bhava is extremely important. That kind of respect towards teachers has to be there. That inculcates very good qualities in your life. And whatever we learn in these impressionable years is the most important thing in your life. I must tell you, schools, though they allow you to spend only 6 hours during the day, but give you maximum inputs for your whole of your life. And how do you learn all this? Is by observing everyone, by reading, by developing yourself. Like the skills that you learn in school stay with you all through your life. So this is what you are supposed to do. I will also tell you that social media,
though extremely useful, because so many of us shifted to social media more during COVID time because we had no other alternative. But now that we have open field, I think all of you must use limited social media only for your benefit, development. But at the same time, you should go out. You have a beautiful playground, on the playground. Because I think somebody spoke about Tirak. Tirak had taken 1 year off from his academics to build his strength. Because त्यांचं म्हणणं असं होतं की मला माझ्या देशाकरता जर काम करायचं असेल तर माझ्यामध्ये तेवढी पॉवर, शक्ती पाहिजे. आणि स्ट्रॉंग माइंड रिसाइड्स इन अ स्ट्रॉंग बॉडी. So that is the first thing. So you have to go out on the playground, play, develop your skills. Because sportsmanship builds a lot of your career and it inculcates values. Because you learn to take defeat on the field. And very, very importantly, today, in today's world, maybe the parents want to pamper their children so much that they don't want their children to face any defeat, any inconvenience. They want the children to be ensconced in a safety network, which is, I feel, very, very wrong. You have to face difficulties, you have to face adversities. Just now, as we saw, the war that these soldiers played, isn't it very difficult? Standing in Siachen in the harsh winters, just imagine yourself. If we feel, अरे it's बारिश आ रही है आज सुबह से यार बारिश आ रही है, आज नहीं बाहर जाएंगे. That is not a way. We have to brave ourselves into every adversity, and उसके लिए हमें we have to become very powerful, very strong, and that happens only at school level. We have to make our mind also strong, which comes through reading. Lot of reading you have to do, and it's not just the book reading. You can read on a tablet also, but books also provide quite a lot, as well as reading people. मुंबई के पूर्व महापौर और वर्सोवा एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन अरुण देव जी ने स्टूडेंट्स द्वारा पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तारीफ करते हुए कहा कि इसकी तैयारी कराने में जिनका योगदान है उनकी तारीफ करना भी ज़रूरी है. उन्होंने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर कविता रेगे का कार्यक्रम में आने के लिए आभार जताया. साथ ही कॉलेज में मैनेजमेंट क्लासेस की जल्द ही शुरुआत करने की जानकारी स्टूडेंट्स को दी. आपले आजच्या चीफ गेस्ट डॉक्टर कविता रेगे, आमचे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल सिंग, राजन चानो, डॉक्टर क्षितिज मेहता, प्रिन्सिपॉल सोनाली बराने, कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल डॉक्टर संतोष तिवारी, त्याच्यानंतर चौधरीजी, वेगळे साहेब, बाकी केजी आणि यांचे प्रिन्सिपॉल, सगळे टीचर्स, स्टुडंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, या सगळ्यांचं मी मनापासून या 80व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो सगळ्यांना. आणि आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की हे जे स्वातंत्र्य आहे त्याच्याकरता ज्या लाखो लोकांनी, स्वातंत्र्य सैनिकांनी, बाकीच्या लोकांनी जो त्याग केला त्याच्याकरता आपण अभिवादन करतो त्याचं. मित्रांनो, मी फार काही बोलणार नाही, 2-3 गोष्टी सांगणार आहे. एक तर मला असं वाटतं यावर आपले प्रिन्सिपॉल, स्टाफ आणि आमची कल्चरल कमिटी म्हणजे डॉक्टर क्षितिज मेहता, अनिल सिंग, राजन ह्यांनी जे काम केलं त्यामुळे बाकी टीचर्स आणि सगळे ह्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. कारण पहिल्यांदा आम्ही असं बघितलं की जी कल्चरल कमिटी आहे आणि त्यांनी बाहेरच्या प्रोफेशनलला पण इन्क्लूड केलं होतं, त्याचं खूप खूप मनापासून अभिनंदन. दुसरं असं आहे की काही गोष्टी न सांगताच आपण करतोय आणि त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की कोणाचा चेअरमनचा किंवा असा कोणाचा रोल नसतो. रोल आपल्या सगळ्यांचा असतो. हे जे सगळं टीमवर्क आहे त्यांनी हे सगळं उभं राहतं. आत्ता लवकरच डॉक्टर अनिल सिंग यांच्या मदतीने आपण मॅनेजमेंटचे कोर्सेस या कॉलेजमध्ये सुरू करणार आहोत. गेल्या वर्षी आपण IT आणलेलं आहे. आता त्याच्याचबरोबर AI, रोबोटिक याचे पण काही विशेष आणि ते सेकंडरीपासून आपण सुरू करू. त्याचा जो सगळा प्लॅन आहे तो हे करतो. दुसरं माझ्या मनात आलं की 1-2 गोष्टीची आज घोषणा करावी. एक तर असं आहे
अनाऊन्समेंट करावी म्हणाली. ओम कटारे म्हणून माझे मित्र आहेत, त्यांना सगळ्यात मोठा जो नॅशनल अवॉर्ड आहे संगीत नाटक अकादमीचा, तो 13 तारखेला राष्ट्रपतींकडनं मिळाला. तर त्याचा माझे मित्र म्हणण्यापेक्षा आपल्या सगळ्या ट्रस्टीजनी, आपल्या सगळ्या प्रिन्सिपल्सनी आणि इन्स्टिट्यूशननी मदत केल्यामुळे हा अवॉर्ड त्यांना मिळू शकला. त्यामुळे ओम कटारेंकडनं एकदा जोरदार टाळ्या वाजवाव्या. आणि त्यांच्या मदतीने आम्ही एक खुला मंच म्हणून लवकरच इथे एक प्लॅटफॉर्म तयार करणार आहोत टॅलेंटच्या दृष्टीने. म्हणजे मग संगीत असेल, नाटक असेल, कविता असेल, त्याची तारीख आणि हे लवकरच कळू. म्हणजे मला असं वाटतं की आपल्या इन्स्टिट्यूशनचं, खास करून आमच्या ट्रस्टींचं जे योगदान होतं त्याच्यामुळे त्यांना हा नॅशनल अवॉर्ड मिळाला. वर्सोवा एजुकेशन ट्रस्ट के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति से भरे हुए कुछ ऐसे कार्यक्रम पेश किए गए जिन्हें दर्शक टकटकी बांधकर देखते ही रह गए. राही है हम साथी है हम वीर सिपाही है, हम राही है हम साथी है हम वीर सिपाही है. हिमाय भूमि हि जन्मभूमि हि कर्मभूमि अमुची महावंदनीय अति प्राणप्रिय हिमाय मराठी अमुची. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम. भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर मारेंगे. वंदे वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की Honorable Chief Guest, Principal, teachers, parents, and my dear friends, a very happy Independence Day to everyone. अगस्त 1947 का दिन भारत देश के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है. ऐसे दिन हमारा देश लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ था. माझे संपूर्ण कुटुंब, गाव दिनांक 1 मे 2027 पर्यंत साक्षर करेल. मी माझ्या परिसरातील एकही व्यक्ती असाक्षर राहणार नाही यासाठी सतत प्रयत्न करेल. आम्ही या राष्ट्राचे विद्यार्थी आणि युवा आज गंभीरपणे अंमली पदार्थ मुक्त जीवन जगण्याची शपथ घेत आहोत. इस अवसर पर वर्सोवा एजुकेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी राजन चंडोक, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर अनिल सिंह, ट्रस्टी डॉक्टर क्षितिज मेहता और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष तिवारी ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं पेश की. The 80th year of India's independence, we have finished 79 years. We had undergone, our country and countrymen had undergone literally a slavery of 200 years. We saw the light of the day 15th August 1947. Thereafter, India has grown into a big economy and has become also an industrially capable country. We have education institutions spread from villages to the best cities. All our schools
are enthused with the nationalistic fervor, patriotism, which we always have inherited from our armed forces. And therefore, at this occasion today, I extend my warmest wishes to one and all, to my citizens, to my countrymen, especially to the students, with the hope that the lamp of patriotism shall always be there in each and every heart, and never again the yoke of slavery should come to anybody in the world. Thank you. सबसे पहले तो हमारे सारे देशवासियों को, विशेष करके मेरे स्कूल और कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, हमारे जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, उनको 80वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमने स्वतंत्र भारत के 79 साल पूरे कर लिए हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आज का जो यूथ है उसके लिए मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़, जो आपके पास संविधान के अधिकार हैं उसका आप खुलकर पूरी तरह से इस्तेमाल करिए, वो आपका हक है। लेकिन वो करते वक्त ये मत भूलिए कि ये आपकी उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारी भी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक घोषणा की है कि वो चाहते हैं कि अगले ओलंपिक में हमारे देश की युवा हर प्रतिस्पर्धा में, हर स्पर्धा में भाग लें और मेडल जीत कर आए। इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स टैलेंट हंट ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। एक स्कूल का और कॉलेज का ट्रस्टी होने के नाते ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, अपने संस्थानों में जितने भी यंग टैलेंट है उसको हम पहचानें, उसको विशेष करके ट्रेनिंग दें और देश के लिए हर प्रतिस्पर्धा में उसे भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अगर हम सब 140 करोड़ भारतीय साथ मिलकर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, तब हमारा देश एक विकसित देश के रूप में उभर कर आएगा। धन्यवाद। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 बधाई। थैंक यू। प्रोग्राम का जैसा सारा कंट्रोल था, जैसा बच्चों का ये था, वो अलग अलग कमेटियाँ हैं स्कूल में। कोई कल्चरल कमेटी का है, कोई खाने का कमेटी में इंचार्ज, कोई डिसिप्लिन कमेटी में, तो क्या लाना है सब लोगों को। तो सारी कमेटियाँ को भी ऑफकोर्स धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग। प्रिंसिपल HM जो है हमारे, फिर AHM के और सारे जैसा बोला स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, वो सबका वो। और उसके बाद सोचा था कि इनको बच्चों जो सुबह से है उनको भूखा नहीं रखना है, तो क्या उनको नाश्ता देना चाहिए, वो भी हम लोग ने मेटिकुलसली प्लान किया। तो जैसा आपने जो किया होगा नाश्ता, इट शुड बी वेरी गुड एंड सेटिस्फाइंग। तो उनको बच्चों भी जाएंगे तो घर एटलीस्ट दे विल बी हैप्पी। तो सब प्रोग्राम का प्लानिंग करते करते हम लोग करीबन 15-20 दिन लगा। और सारे टीचर ये सोचते थे, कमेटी वाले, उनको सुबह 2, 3, 2:30 बजे तक हम यहाँ ही रहते, सब प्रोग्राम को वो करके हम लोग फाइनली 15 अगस्त का डेट है, सब प्रोग्राम एकदम अच्छा हो गया। आई एम थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स एंड स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द टीचर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसने सब सहयोग किया और आज प्रोग्राम बढ़िया हो गया। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट ईयर भी शॉर्ट एंड स्वीट होता है तो ज़्यादा सबको भी अच्छा लगता है। ज़्यादा लंबा स्पीच भी हम लोग ने कोई भी स्पीच ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 मिनट से ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। तो इसे डांस भी उतने 1 मिनट का था, स्पीच भी उतने मिनट की थी, तो सब बच्चों ने भी बहुत ही बढ़िया किया। वंस अगेन हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और जैसा नशा मुक्ति का भी था वो भी हो गया। अभी लेट्स सी जितना हो सके उतना प्लेज किया है, जितना हम हेल्प कर सके विल हेल्प।
वर्सोवा एजुकेशन ट्रस्ट में कमला मेहता कॉलेज और वर्सोवा वेलफेयर हाई स्कूल जूनियर कॉलेज की तरफ से जो इंडिपेंडेंस डे हमारे यहाँ संपन्न हुआ, काफ़ी शानदार तरीके से हुआ। सबसे पहले मैं सभी लोगों को 80वें स्वतंत्र दिन की सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश आगे प्रगति कर रहा है वैसे ही करता रहे। और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, सभी ने काफ़ी मेहनत की और कॉलेज ने, स्कूल ने जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए काफ़ी अच्छे हुए, सराहनीय हुए। सभी टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की। इस कार्यक्रम के आखिर में हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस श्रीमती सोनाली वदाने ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इसी के साथ इस कार्यक्रम को कामयाबी से पेश करने वाले स्कूल कॉलेज के स्टाफ की भी प्रशंसा की। सर्वांना प्रथम 80व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। आजचा कार्यक्रम अतिशय सुंदर, शिस्तबद्ध, नियोजित पद्धतीने पार पडला आणि ह्या कार्यक्रमाची आनंदाची गोष्ट म्हणजे तो वेळेत आणि व्यवस्थितपणे संपन्न झाला। या यशाचे संपूर्ण श्रेय कार्यक्रमाचे मेहनत घेणारे सर्व आयोजक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना जाते। एक मुख्याध्यापिका म्हणून या सर्वांचे आभार मानणे मी माझे कर्तव्य समजते। सर्वप्रथम मी आपल्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या श्रीमती डॉक्टर रेगे मॅडम यांचे मनपूर्वक आभार मानते की त्यांनी अगदी आपल्या व्यस्त वेळेतून वेळ काढून वेळेच्या आत उपस्थित राहिल्या आणि आमचा कार्यक्रम वेळेवर चालू करण्यास त्यांनी आम्हाला खूप मोठे योगदान दिले। त्यामुळे मी त्यांचे प्रथम आभार मानते। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।